start with the next topic. We have already completed our objectives, and we'll be now moving further, and we'll be doing the next topic, which is we were doing we have completed other objectives also. So now let's start with the next topic, which is role of financial management. I hope the objectives, whether it is profit maximization or wealth maximization, and the objectives which are subordinate to the wealth maximization objective, ये सब आपको समझ में आ गया है. किसी को कोई भी डाउट है तो मैं फिर से मौका दे रही हूँ आपको. प्लीज राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स एंड आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट. If there are no doubts, let's move further. Okay, no doubts as of now. So let's move further. So the next topic that we are going to start today is role of financial management. Okay, financial management, हमको पता है कि हम बात कर रहे हैं कि organization, it should have a good profitability and solvency position. That means that is taken as the financial health of the organization, right? तो financial management भी इसी बारे में बात करता है. So let's move further in it. Financial management influences the financial health of the business. That means हर एक चीज जो हम देख रहे हैं कि जो ट्रेडिंग या पीएनएल अकाउंट में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है या बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं से आप देखेंगे तो वो एक रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट वी आर टेकिंग अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? क्योंकि अगर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे करंट एसेट में कितना पैसा लगाना है या करंट लाइबिलिटीज के लिए कितना फंड अवेलेबल रखना है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई लिक्विडिटी पोजिशन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मुझे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कितनी बोरो करनी है और उनको पे करने के लिए कितने पैसे अवेलेबल होने चाहिए, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सॉल्वेंसी पोजिशन. Similarly, whatever funds that I have borrowed, how am I going to invest it? Where am I going to invest it in long term, in short term, in what proportion I'm going to invest it? Am I not referring to the balance sheet? और ये सब जो items होते हैं, यही सब तो वो items है जो हमारे financial position statements में आते हैं. तो everything, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है that almost all the items appearing in the financial statements are directly or indirectly affected through the some financial management decisions. And financial management decisions means we are talking about the three decisions, which are financing, investing, and your dividend decisions. Okay, आगे चलते हैं. So role of financial management is divided into certain points. So first one is size and composition of fixed asset. Okay, there is one doubt that I have just received. Let me just go through that doubt. Jia, the question, ma'am, can you please explain the time value of money again? Okay, time value of money. Time value of money, इसका नाम से समझिए जिया, टाइम और टाइम के साथ मनी की क्या वैल्यू रहेगी, जो कि हम देखते हैं कि हर बीतते हुए दिन के साथ जो मनी की वैल्यू होती है, जो उसकी वर्थ होती है, जो उसकी परचेजिंग पावर होती है, वो रिड्यूस होती जाती है. तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव था वो बेसिकली आपके मॉनेटरी वैल्यू को कंसिडर करता है. मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि एब्सोल्यूट मनी को देखता है कि हमने इतना पैसा अगर इन्वेस्ट किया तो इसके अगेंस्ट हमको कितना मिल गया. दैट इज व्हाट वी कॉल एज एब्सोल्यूट प्रॉफिट, राइट? कि 1 लाख इन्वेस्ट किया, 2 लाख मिल गया, 1 लाख का प्रॉफिट है, एब्सोल्यूट प्रॉफिट. वेयर एज व्हेन वी सी कि वो प्रॉफिट जो हमको मिला है वो मिला है 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल के बाद आज मेरे इस प्रोजेक्ट की वर्थ हो गई है 2 लाख रुपए. तो आप ये बताइए कि वो जो एडिशनल आपने 1 लाख रुपए कमाया है उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, राइट? अगर आप उसको इन्फ्लेशन रेट से आप डिवाइड करके देखेंगे तो कन्वर्जन में आपको पता चलेगा कि शायद उसकी वैल्यू 40,000 ही होगी या 50,000 होगी. तो ये हमने क्या जाना कि जो वो प्रॉफिट हमको 1 लाख दिख रहा था वो 1 लाख नहीं था, इट वॉज एन एब्सोल्यूट टर्म. तो यही बात बताई गई कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, it does not take into consideration the real value of the money which is existing, but it is only taking into consideration the absolute amount which we are able to see, but we are not realizing its worth, right? Which on which we should focus, and which is being focused in the objective of wealth maximization, right? Let's move further. Okay, तो अब हम चलते हैं, वापस आ जाते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक पे.
तो पहला आपका पॉइंट है साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट. ओके, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट या साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, दोनों किस पे डिपेंड करता है? दोनों ही डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे. नाउ इन्वेस्टमेंट डिसीजन विल डिसाइड दैट हाउ मच आर वी गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फिक्स्ड एसेट and how much are we going to keep for taking care of our liquidity position. That means how much are we going to invest in our current assets, right? एंड करंट एसेट्स में मैंने पहले भी बताया था कि आपको तीन करंट एसेट्स प्राइमरीली देखने होते हैं, विच इज डेटर, कैश एंड रिसीवेबल्स, राइट? तो इन तीनों के अंदर हम देखते हैं कि हाउ वेल आर दे गेटिंग मैनेज्ड, हाउ एफिशिएंटली आर वी मैनेजिंग इट. दैट मींस इफ वी आर मैनेजिंग इट एफिशिएंटली तो आपके पास कभी भी जो लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन होती है वो नहीं होगी, राइट? दैट मींस यू विल ऑलवेज हैव surplus money available with you so as to take care of your daily expenses. Similarly, आपके साइज या कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट में हम बात करेंगे कि जिस भी तरह का हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं वो बेसिकली बेस्ड होता है कि कंपनी की ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कंपनी आगे खुद को एक्सपैंड कर रही है या मॉडर्नाइज कर रही है. अगर वो एक्सपैंड कर रही है तो किस तरह का एसेट और खरीदने वाली है, क्या वो एसेट हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उसका ब्लॉक जो है वो बड़ा हो जाएगा. दैट मीन्स अगर मैं कहूँ कि फर्नीचर आप खरीदने वाले हैं तो फर्नीचर का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा. या फिर आप ऐसा कोई एसेट खरीद रहे हैं विच इज द फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड, तो उस केस में दैट इज द न्यू एंट्री ऑफ द फिक्स्ड एसेट दैट यू आर परचेजिंग. सो दैट विल कंप्लीटली बी डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन इन विच the business is in right now and what is the way forward to it. Okay, so based on that the decisions are or the composition is decided. So let's just go through both the points. So size and composition of fixed asset depends directly upon the investment decision, that is how much capital the company is planning to invest in the fixed asset and in which type or block of fixed asset. तो ये जो भी फिक्स्ड एसेट परचेज होगा वो जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एंड दैट विल बी अपीयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. देन नेक्स्ट इज क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड देयर ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल. सो इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट will lead to the proportionate increase in the working capital requirement. ऐसा क्यों कहा गया कि जब हमारा फिक्स्ड एसेट बढ़ता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है? तो इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज जब भी आप देखेंगे कि फिक्स्ड एसेट परचेज किया जाता है, जैसे मैं कहूँ कि इफ आई एम एक्सपैंडिंग, तो अगर मेरा एक्सपेंशन हुआ तो मैंने फिक्स्ड एसेट तो परचेज कर लिया, मगर अब जो मेरा एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से मेरे डे टू डे एक्सपेंसेस भी तो बढ़ेंगे, उसका मेंटेनेंस, उसका अपकीप भी तो बढ़ेगा. तो ये सब जो बढ़ रहा है उस पर काम करने वाले लोगों को भी जरूरत पड़ेगी. इफ यू हैव परचेज्ड अ न्यू मशीन, आप रॉ मटेरियल भी लेकर आएंगे उस पर प्रोडक्शन करने के लिए. सो डायरेक्टली प्रपोर्शन के अंदर अगर कोई भी एसेट बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, राइट? और वो जो हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ता है वो बढ़ता है इन कॉम्पोजिशन विद कैश, डेटर्स एंड वर्किंग कैपिटल. So in what proportion are they going to increase, that has to be taken into consideration, right? आगे पढ़ेंगे. Decisions about the credit policy, inventory management, etc. affect the amount of debtors and inventory, which in turn affects the current assets and its composition, right? I hope this is very much clear to everyone. Let's move further and let's move on to the next slide. Okay, so the next slide says next point in the role of financial management is amount of long term and short term financing. Okay, तो amount of long term and short term financing जब हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि organization किस पे focus कर रहा है. Is it focusing on the profitability or is it focusing on the liquidity? So if it is focusing on the liquidity, so it will try to have more of the funds for working capital requirement, जिससे कि liquidity maintained रहे. मगर जब हम बात करते हैं हमारा पर्पस है प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना, तो आप देखेंगे कि प्रॉफिट कभी भी वर्किंग कैपिटल के थ्रू नहीं बढ़ता है. प्रॉफिट हमेशा बढ़ाया जाता है आपके फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करके, राइट? तो जब भी आप फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, द सोर्स व्हिच शुड बी प्रेफर्ड शुड बी ऑलवेज लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. और जब भी लिक्विडिटी को मेंटेन करना इज द ओनली प्रायोरिटी एज ऑफ नाउ, तो उसके अंदर आप शॉर्ट टर्म को भी प्रेफर कर सकते हैं. ओके,
So let's read through this point. So amount of long term or short term financing to be used. The proportion of both long term and short term sources determined on the basis of liquidity and cost analysis. Long term sources give more liquidity but involves higher cost also compared to current liabilities. तो जब हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के थ्रू आपने पैसा रेज किया और वो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वर्किंग कैपिटल के अंदर, तो कॉस्ट तो आप इनकर करेंगे, मगर उसके साथ साथ आपकी करंट लाइबिलिटीज जो है, आपको करंट लाइबिलिटीज को भी रीपे करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड कि if we have to maintain the liquidity and there is no as such situation wherein we are focusing towards the increasing of profitability, so we can always choose for the short term sources also, which is current liabilities. मतलब हम current sources को भी choose करके पैसा raise कर सकते हैं, क्योंकि जब हम long term sources को use करते हैं liquidity increase करने के लिए, तो हम ज्यादा cost incur करते हैं, right? However, there is a choice between the liquidity and the profitability. मैं फिर से एक बार ये पॉइंट समझा देती हूँ आपको कि बात हो रही है यहाँ पर कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में से क्या इस वक्त सिचुएशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको क्या मेंटेन करना है. सो इफ इट इज अ लिक्विडिटी व्हिच हैज टू बी मेंटेन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड डिपेंड मोर ऑन शॉर्ट टर्म सोर्सेस, बिकॉज अगर वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस पे डिपेंड करेगी तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस के थ्रू आप फंड्स तो रेज कर लेंगे और लिक्विड फंड्स भी अवेलेबल होंगे आपके पास, मगर फिर उसकी कॉस्ट भी इनकर होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप करंट लाइबिलिटीज के थ्रू अपना लिक्विडिटी मेंटेन करेंगे तो वो आपको उतनी कॉस्टली नहीं रहेगी एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म सोर्सेस. सेकेंडली, अगर बिजनेस का एम प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आपको जरूरत होती है कि आप फिक्स्ड असेट्स को परचेज करें. और जब भी हम बात करते हैं फिक्स्ड एसेट्स की, तो द सोर्स दैट शुड बी प्रेफर्ड शुड ऑलवेज बी द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी. सो अब अगेन ये एक कॉम्पोजिशन होता है, एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड कैपिटल स्ट्रक्चर. उसके बेसिस पे समझना पड़ता है कि किस सिचुएशन में हम कितना. ओके, एक क्वेश्चन आया मेरे पास, पहले से सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं. द क्वेश्चन सेज, मैम शॉर्ट टर्म सोर्स ज्यादा लिक्विडिटी देने चाहिए ना? बिल्कुल सही बोला आपने वैदिक, मैंने भी यही बात बोली है कि अगर हमारा लिक्विडिटी हमारा ऑप्शन है, हमारा एम है लिक्विडिटी मेंटेन करना सिर्फ, तो हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज यानी कि करंट लाइबिलिटीज को प्रेफर करेंगे, राइट? क्योंकि अगर हम लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, पढ़ो फिर से पढ़ो उसे क्या लिखा है, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज को यूज करते हैं लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ज्यादा लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर उसकी कॉस्ट ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू द करंट सोर्सेज दैट इज शॉर्ट टर्म सोर्सेज. इसीलिए लिक्विडिटी के लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेज की प्रेफरेंस ज्यादा होनी चाहिए. एंड व्हाट आर दैट शॉर्ट टर्म सोर्सेज? शॉर्ट टर्म सोर्सेज मींस द करंट लायबिलिटीज. आई होप वैदिक आपको अभी समझ में आ गया है. अभी भी कंफ्यूजन है तो फिर से पूछो. इज इट क्लियर? ओके, लेट्स मूव फर्दर. आई होप सभी को समझ में आ गया है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का. नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से फॉर्म में समझा दे रही हूँ. देखिए, दो ऑब्जेक्टिव हैं बिजनेस के, एक है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है लिक्विडिटी. जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी की, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन. वर्किंग कैपिटल के अंदर यू कैन ओनली मेंटेन द लिक्विडिटी, मतलब सफिशिएंट कैश अवेलेबल होना चाहिए, सफिशिएंट करंट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए आपके पास टू पे ऑफ the current obligation to meet the day to day requirements, right? तो ये हम बात कर रहे हैं लिक्विडिटी की. अब लिक्विडिटी की जब हम बात करते हैं तो हम प्रॉफिट्स को सिर्फ रिटेन करते हैं या कह सकते हैं कि सस्टेन करते हैं. प्रॉफिट बढ़ते नहीं है, सिर्फ मैनेज होते हैं, राइट? तो उस केस में अगर मुझे फंड्स रेज करने हैं, सो आई हैव गॉट टू ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, राइट? तो अगर आप लॉन्ग टर्म से पैसा रेज करेंगे तो आप लिक्विडिटी तो जरूर बढ़ा लेंगे, मगर लॉन्ग टर्म के साथ उसकी कॉस्ट भी तो आ रही है जो कि ज्यादा होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज.
तो इसीलिए जब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एम है लिक्विडिटी मेंटेन करना, तो आप पैसा रेज कीजिए शॉर्ट टर्म के थ्रू, और जब आपका एम है प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना, that means we are focusing towards buying of more of fixed assets so as to increase the profit levels, so we should have more of long term sources of financing. Okay, प्रार्थना आपने एक क्वेश्चन लिखा है, मैम बोथ आर इंपॉर्टेंट टू ग्रो. एग्जैक्टली, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की तो प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है, मगर किस प्रोपोर्शन में, एंड व्हाट इज दैट इन विच यू आर फोकसिंग. क्या आपका फोकस ग्रोथ पर है, या आपका फोकस ग्रोथ पे, इसका मतलब है कि आपका फोकस अभी प्रॉफिटेबिलिटी पे है. लिक्विडिटी मेंटेन होगी, मगर लिक्विडिटी के लिए उस केस में आप फंड्स लॉन्ग टर्म के थ्रू ही निकाल लेंगे, राइट. मगर जब हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी पर है, हम ग्रोथ मोड पे हैं मगर अभी हम नया फिक्स्ड एसेट परचेज करने का नहीं सोच रहे, तो उस केस में वी शुड फोकस ऑन raising finance using only the short term sources of financing. I hope Ratna बच्चे this is clear now. Okay, let's move further. ये इसी पॉइंट का एक्सटेंशन है, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, दैट इज डेट एंड इक्विटी. डेट एंड इक्विटी को हम कह सकते हैं कि डेट एंड इक्विटी मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर हमने फॉर्म करना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम डेट और इक्विटी के थ्रू पैसा तो रेज कर रहे हैं, मगर बेस्ड ऑन द सिनेरियो, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, that is what is the amount of profit that an organization is deriving, based on that it should opt for debt or equity. और हर सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट यही होना चाहिए कि उसका जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो वो मैनेजेबल लेवल पर हो, ऑप्टिमम लेवल पर हो, राइट, सो दैट the organization is able to cover the risk which it is incurring by raising funds. Okay, I hope this is clear. Let's move on to the next point. Next point says that all items in P&L account, that means जो भी आइटम्स हमने अभी पीछे पढ़े वो सब आइटम्स कहाँ आते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, यही आपके कहीं ना कहीं आ जाते हैं, राइट. हायर डेट मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस. इंटरेस्ट कहाँ शो करते हैं आप शो करते हैं इंटरेस्ट को in your profit and loss account. Also higher equity means higher payment of dividend, right. तो डिविडेंड आप कहाँ शो करते हैं, डिविडेंड को आप शो करते हैं आपकी लाइबिलिटी साइड में, राइट, जहां पर आप शो करेंगे एज प्रपोज डिविडेंड या फिर एज इंटरिम डिविडेंड. ओके, सिमिलरली एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस लीड्स टू हायर ओवरऑल एक्सपेंस अपीयरिंग इन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो अगर आपने बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जिस भी तरफ से आप फंड्स रेज करें और जहां भी इन्वेस्ट करें वो सब चीजें आपकी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट होके आपके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में आती है, right. And that is why the financial management decisions whatever that we are taking, we should take an optimum decision. We should try to reduce our cost as far as possible. We should try to increase our return as far as possible so that the business can increase its surplus, right. And surplus increase होगा तो वो जाएगा हमारे equity shareholders को, and we will be able to achieve our wealth maximization objective, right. And of course when we are achieving our wealth maximization objective, this is also going to reflect the financial health of the organization in totality. I hope this is all clear now to everyone. Let's read the last paragraph. Good financial management aims at mobilization of financial resources at lower cost and deployment of these funds in most lucrative activity. और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जब अच्छे से आप ये सब चीजें मैनेज कर रहे हैं, जब डिसीजंस आपके वाइजली लिए जा रहे हैं and they are effective enough, and this is leading to the generation of surplus and incurring of optimal amount of cost, so this will reflect the financial health, and financial health is reflected through the financial statements of the organization, right. So this is the last topic for today and we have completed this topic. So the assignment question for today is, the primary objective of financial management is to maximize the shareholders wealth. Explain. This question is for 3 to 4 marks. आपको जान के बहुत खुशी होगी कि अब तक बोर्ड में एक भी बार रोल पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम ऐसा मान सकते हैं कि ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए
आप सिर्फ रोल को पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से, और ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो हमने फर्स्ट सेशन में किया था आज कवर, उसके ऊपर आज आपको ये क्वेश्चन, ये असाइनमेंट सॉल्व करना है, and the weightage of this question is 3 to 4 marks. I hope this is clear to all. Anybody having any doubt, please write it down in the chat box. Okay, what is the meaning of lucrative? Lucrative का मतलब होता है बच्चे, what is more beneficial, जो आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट ड्राइव कर रहा हो, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे लिए ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है, कंजीनियल ऑप्शन है, feasible ऑप्शन है, attractive ऑप्शन है, right? These are all synonyms. I hope you have got the point. Okay, so thank you everyone. Let's meet tomorrow, and I hope I have been able to convey all the concepts and all the points, whatever that we have discussed today, in a proper manner, and we were not fast, so you have understood everything that we have covered. So for today's meeting, that would be all, and tomorrow when we are meeting, we'll be starting off with the financial decisions. और अब जो भी हम फाइनेंशियल डिसीजंस करेंगे वो सब हम थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे. तो अब जैसा कि इशिता ने पूछा था कि अब हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अब हर डिसीजन जो हम पढ़ेंगे उसके साथ उसके फैक्टर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सारे डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आएंगे आपके एग्जाम्स में भी इन डिटेल, राइट? सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. एंड आदित्य, फिर से आपको वेरी वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, and please take care of yourself and celebrate it at your home only. Okay, so thank you everyone and take care, stay safe.